غمزدہ چہرے، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر فریاد۔ پیمز اسپتال کی آگ میں جلنے والے بچوں کے گھر صفِ ماتم۔ لخت جگر کو کھونے والے غمزدہ والد نے ARY سے گفتگو میں ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ کہا میری بچی تو چلی گئی، خدا کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ المناک سانحے میں زندگی کی بازی ہارنے والی جڑواں بچیوں کے گھر میں سوگ۔ ماموں نے بتایا بہن ICU میں ہے، اسے تو بتایا تک نہیں کہ کیا قیامت بیت چکی۔ لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ آگ لگنے کے بعد عملہ بھاگ نکلا اور ہمیں بھی بچوں کو بچانے کے لیے جانے سے روک دیا۔ سانحہ پیمز کی انکوائری کمیٹی نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 30 ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ گائنی وارڈ کے سربراہ، نرس، ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے بیانات قلم بند۔ ڈیوٹی روسٹر، بائیو میٹرک حاضری اور CCTV فوٹیجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیمز حکام نے الیکٹرو میڈیکل رپورٹ بھی انکوائری کمیٹی کو جمع کرا دی۔ کمیٹی نے اسپتال عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ نرسری اور NICU کے عملے کے ڈیوٹی روسٹر کی بھی جانچ پڑتال کی۔ آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک کیا گیا۔ کمیٹی کام مکمل کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ پیمز انتظامیہ نے نئی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں 3 سینئر پروفیسرز شامل۔ فزیکلی دیکھے پھر ہم سب جو ہے کمیٹی میں اس کو ٹیک اپ کریں گے، انکوائری کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے دیکھیں گے، بالکل میرٹ پہ دیکھیں گے کہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہوا ہے، فائر کے حوالے سے ہوا ہے، اس کے بندوبست تھے یا نہیں تھے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا پیمز اسپتال کا دورہ۔ چیئرمین کمیٹی مہیش کمار نے کہا آگ کیسے لگی اب تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ CCTV فوٹیج میں بھی پتہ نہیں چل رہا کہ آگ کیسے لگی، کس کی کوتاہی ہے، کون ذمہ دار ہے، اس کی تحقیقات ہوں گی۔ مکمل چھان بین کے بعد رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ کمیٹی ارکان نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور سربراہ پیمز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ شازیہ صوبیہ اور عالیہ کامران نے کہا باریک بینی سے تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام آباد میں صحت کے شعبے میں خرابیوں کی 2 ہفتے پہلے نشاندہی کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی صحت کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر امجد نے 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، جس میں اسلام آباد کے اسپتالوں اور بنیادی صحت کے مراکز پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے 1 سال پہلے اسپتالوں کے غیر معیاری ہونے کی رپورٹ بنائی تھی، جو آج تک قومی اسمبلی اجلاس میں پیش نہ ہو سکی۔ سانحہ پیمز کے بعد وزیر اعظم نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو سیکرٹری ہیلتھ کا اضافی چارج دے دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمود ہائی پروفائل تنازعات اور اسکینڈل کا حصہ رہے ہیں۔ بدنام زمانہ گندم اسکینڈل ہو یا نندی پور پاور پروجیکٹ اسکینڈل، پنڈی رنگ روڈ کرپشن ہو یا صاف پانی اسکینڈل، کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ نیب میں تحقیقات آج بھی جاری ہیں۔ اب وزیر اعظم نے پیمز واقعے کے بعد انہیں سیکرٹری صحت بنا دیا۔ پیمز واقعے کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کہنا ہے مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، حادثات کبھی بھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ وزیر قانون نے کہا فی الحال 28ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ ایک سوال پر کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر ہماری سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ واقعہ بہت دل خراش ہے، لیکن اس کو پھر سیاسی رنگ دینا اور کسی اور طرف لے جانا میرا نہیں خیال ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے، صرف سندھ نہیں ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں حالات بہتر کرنے۔ جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد۔ پیمز اسپتال واقعہ بہت دل خراش ہے۔ واقعے کو سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ صرف سندھ نہیں، پورے پاکستان میں ہی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے، دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے کام نہیں ہوتے، صوبے کے عوام فیصلہ کریں گے۔
कोई दो राय नहीं, हमारे इदारों को मजीद बेहतर होने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी का ही मंशूर है। दूसरे सूबों को भी बल्दियाती इदारे कायम करके मुस्तहकम करना चाहिए। अस्पताल में जो तफसीलात सामने आई, शर्म से डूब नहीं मरते ये वजीर कि सरकारी अस्पताल से बच्चा अगर चोरी हो जाता है तो आप इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दोगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? या इसके के निजाम को दुरुस्त करो। ये इंतहाई बदतरीन गवर्नेंस है जो इस्लामाबाद जैसी जगह पर मौजूद है। पिम्स अस्पताल में सिक्योरिटी आलात नस्ब न होना शर्म का मकाम है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये सब अंदर से एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लेवी का ताल्लुक कौमी खजाने से नहीं, हुक्मरानों की शाह खर्चियों, लूटमार, करप्शन और 11 अरब के जहाज से है। आज रात मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूरा आमद, हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा विफाक से अपने मसाइल के लिए दलील के साथ लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलतें दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब के 39 तहसीलों में 39 नई फायर टेंडर फराहम की गई। मकसद तहसील की सतह पर आतिशज़दगी के वाक़यात में बरवक्त कार्रवाई है। मरियम नवाज ने रेस्क्यू के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट मुख्तस किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वजीर दिफा की मुलाकात। कुवैती चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी कुवैती वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। कुवैती वफ्द की इलाकाई अमन में पाक अफवाज के किरदार और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। पाक कुवैत दिफाई ताउन इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम करार। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फील्ड मार्शल ने दौरा तेहरान में पुरखुलूस कोशिशें की। पाकिस्तान पर उम्मीद है लेकिन हतमी फैसला तेहरान और वाशिंगटन को करना है। पाक ईरान तिजारत जारी है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। अफगान तालिबान को ज़बानी दावों के बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान रियासती सतह पर इदारा जाती मैकेनिज़्म बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के वज़ीर दिफा की जानिब से दो तरफा मैकेनिज़्म के क़याम की तजवीज़ नोट की है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जासिम अल सानी तेहरान पहुँच गए। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। बानी PTI की हमशीरा उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की बानी PTI की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इससे पहले इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म नामजद करने पर नून लीग में इख्तलाफात सामने आए थे। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। शाहराह फैसल, मेट्रोपोल, सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात। प्रेस क्लब चौरंगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स, PIDC, शहीद मिल्लत रोड और करंगी रोड पर भी ट्रैफिक जैम।
खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 11 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5, बन्नू में 2 खारजी हलाक किए गए। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खुजदार में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलोचिस्तान हुकूमत ने मतलूब दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। फितना हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्द खवातीन से मुतालिक मालूमात देने पर 10 से 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हनीफा, आयशा, रुकैया, हफ्सा, जहरा, अमीना, जरमीन और अजीजा का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुर्बत से है। मतलूब खवातीन बलोचिस्तान में अमन दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन कार्रवाई का आगाज। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना को कल तलब कर लिया। वकील जिब्रान नासिर और फोकल पर्सन हुकूमत सिंध को भी नोटिस जारी। जुडिशल कमीशन के कवायद के मुताबिक कार्रवाई 30 रोज में होगी। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कबल बंद, अमला गायब था। मोहसिन नकवी शदीद बरहम, मामले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। पूछा, दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे क्यों ताले लगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या आवाम की सहूलत के दफ्तर ऐसे चलते हैं? मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर का भी दौरा। आबाद शहरियों की शिकायत का मौके पर ही नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। सेंक्यांग में चीन की डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स आमद। मरियम नवाज ने डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। कहा, पंजाब में लाइव स्टॉक के फरोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज हैं। खवातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के प्रोजेक्ट जारी हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में डेयरी प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। जाली कॉल सेंटर और मुनाफा स्कीम केस में 15 चीनी शहरियों समेत तमाम मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। कराची की अदालत ने मुल्जिमान को 18 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 34 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। 2025 में डिफेंस फेज 1 और 6 में छापा मारा गया था। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नशीलियों के निशाने पर। 3 हट्टी फ्लाईओवर की बुनियाद खतरे में डाल दी। दिन दिहाड़े फ्लाईओवर के पिलर्स का सरिया निकाल लेते हैं। पुल की बुनियादें कमजोर, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। माड़ीपुर रोड लियारी स्टेशन के करीब पेडेस्टेरियन पुल के पिलर उखड़ गए। पुल टेढ़ा हो गया। शहरी जान खतरे में डालकर पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं सामान से लदी भारी गाड़ियां पुल से टकराती हैं, इसलिए पुल टेढ़ा हुआ। खबर चलने पर कराची इंतजामिया का एक्शन। 3 हट्टी पुल पर मुरम्मती काम शुरू। मेयर कराची ने माड़ीपुर पुल की मुरम्मत की हिदायत भी कर दी। कहा, माड़ीपुर पुल NHA के दायरा कार में आता है, फिर भी ठीक करने की हिदायत कर दी। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। अमवात की तादाद 350 से जायद हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 300 से जायद गैर मुल्कियों समेत 1000 से जायद अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबराह मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USCIRF के सरबराह सेसी हेल का कहना है, भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकाम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे हैं। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए।